नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Gopinath Radha Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we'll read one verse and paragraph before we begin. So this is a verse from Srimad Bhagavad Gita, 9th chapter, 13th verse, 9.13. Mahatmanastu mam partha daivim prakritim ashrita bhajanti ananya manaso gyatva bhutadim avyayam. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O son of Parth, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Purport. In this verse, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature.
He is not under the control of material nature. And how is this effected? That is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, at once becomes freed from the control of material nature. That is the qualification. One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary qualification. That is the preliminary formula. Being marginal potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual master, spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called Daivi Prakriti, divine nature. So when one is promoted in that way by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of great soul Mahatma. The Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna, because he knows perfectly well that Krishna is the original person, Supreme Person, the cause of all causes. There is no doubt about it. Such a Mahatma or great soul develops through association with other Mahatmas or pure devotees. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the two-armed form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor are they concerned with any form of demigod or human beings. They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. They are always engaged in the unswearing service of the Lord in Krishna consciousness. Hare Krishna. And then after that there is a beautiful verse. Satatam kirtayantu mam yatantasya drudavrata namasyantasya mam bhaktya nityayukto pasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, all of you. Hare Krishna. So, we have been discussing the introduction, and today Yes. we will complete this. I think we are on the. How to remember God. Sorry? How to remember God. We are discussing in that. Yeah. So, anybody would like to summarize which all points we have discussed? Previously? This is the, I think, point number 7. 7. Yeah. First 6 points. Read one by one, no problem. Yeah. So 4 things required to understand the Bhagavad Gita. Yes. That is what? Number 1. Yeah. Okay. Number 2. As it is. 5 subject matters: Ishwarji, Yeah, Prakriti, Prakriti. Parvati. Okay. Third is Chetna, Okay. consciousness and taste purity. 4th is complete and absolute truth. Complete absolute truth. Next. Vedic knowledge is perfect without any error. 6th is Sanatana Dharma, Vedic knowledge. And 7th. How What to is the kingdom of God and how to attain it? Okay. So what is Sanatana Dharma? Doesn't have start, everything return. Anything which doesn't have end or neither beginning or nor end. And it doesn't have any religion. Doesn't have Any religion. is not Sanatana Dharma. Sorry? Sanatana means eternal, that ever existing. What is ever existing? It has no beginning and has no end. What is that? That's what I am asking. That is just supposed to explain today. No. When you realize the purpose of relationship to serve, Exercise nahi hua hai. it is Yeah, one I didn't come to this page. Previously. eternal function for the eternal being. Yes. What is that never changes? Service. Service. कुछ भी बन जाओ आप, या पेड़ बन जाओ, फिर सब करना है। पेड़ भी सेवा देते हैं, मालूम है ना? छाँव देते हैं, fruit Yes. देते And they give service unconditionally. If you cut a tree, tree will not protest.
पानी दिया तो लेगा, नहीं दिया तो सूख जाएगा अपने आप, चिल्लाएगा नहीं वो. And that unconditional service attitude is Sanatan Dharma. That which थोड़ा सा जोर से बोल. अच्छा अभी आएगा, जोर से आएगा. हरे कृष्ण. अरे वो आजकल क्या है, 2 हफ्ते से बड़ा वाला नहीं ला रहे क्योंकि मैं दूसरे जगह से आ रहा हूँ घूम घूम के. Yeah, so that is Sanatan Dharma. It's a simple definition, always keep in mind. Because that is the main section there. Something which we always do, and that is service. We are always serving. एक क्रिमिनल भी सेवा करता है जेल में, जेलर की. जेलर भी सेवा करता है क्रिमिनल की. एनिमल इज सर्विंग ह्यूमंस एंड ह्यूमन इज सर्विंग एनिमल. बराबर ना? So everyone is serving, and finally when we serve the Supreme Lord, that is the perfection of our service. That means Sanatan Dharma is to serve the Supreme Lord. It's Sanatan Dharma. Service तो सब लोग कर रहे हैं, बिना सेवा के कोई रह नहीं सकता. There is no exception within this creation. कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ. कोई है ऐसा? कोई नहीं है. कितना भी बड़ा आदमी होने दो या कितना भी छोटा होने दो, everyone is serving. A small insect you see, mosquito, they are also serving. Whom? They also have their kids. उनका भी एक रहता है छोटा सा फ्लैट, है ना. कल उधर मैं सोया था टेरेस पे, पता नहीं एक कहाँ से घुस गया मालूम नहीं पड़ा, मच्छरदानी के अंदर वो नेट था, चेन. सुबह बल्कि हो गया था वो. That means what? Whole night I was giving service. He had a good feast. Morning I opened the chain. मैं बोला चलो बाहर निकलने दो, इसको जाने दो. बाहर निकल नहीं रहा था, उसको लगा फीस्ट चलता रहेगा यहाँ पे अभी. So like that we are always serving, and that is Sanatan Dharma. So now अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि हमें सेवा करना है, तो भी सेवा करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? भगवान की शरण. In the kingdom of God, right? Because that is the place where we have been serving the Supreme Lord from time immemorial, but we have forgotten that. और हम लोग वहां से यहाँ पे आए हैं. जैसे पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है तो पुत्र क्या करता है? घर छोड़ के भाग जाता है, और पिताजी उसको समझाने की कोशिश करते हैं. Why are you struggling there? Why don't you come back? Stay with me and let's just be partner in our business, right? That's initial talk, but then later you say you are the owner of business, Baba. What to speak of partnership? तो इस तरह से भगवान भी हमें समझाने का कोशिश करते हैं कि क्यों स्ट्रगल कर रहे हो भौतिक जगत में. Come back to your original home and be happy with me. And that is the whole purpose of Bhagavad Gita, to call every one of us back home, back to Godhead. Right? This is not our home. Is this our home? Temporary. Yes. Temporary home मतलब inconvenience. रास्ते में लिखा रहता है ना, inconvenience regretted. बराबर लिखा रहता है ना, inconvenience regretted. So इस जगत में inconvenience होते रहेगा. And Krishna says, sorry Prabhu, inconvenience regretted. Please come back to your home, back home. There you will have all convenience, no inconvenience, right? So that's why kingdom of God. So I think we have described already. And then we also discussed how to attain it. The first one was to become nirmana moha, become designation-less. उपाधियों को त्याग दो. Give up material designation. Yeah. Give up मतलब remove the conception within your mind. आप जो है वो भी बने रहेंगे.
You are a businessman, you will remain businessman. But then you will know that I am not the owner of this business. Who is the owner of this business? The Supreme Personality of Godhead. Yes. And how do you know that? कैसे पता चलता है आपको कि भगवान इसके ये हैं, मालिक हैं? कैसे पता चलता है? How do you know that? Because he's the proprietor, he's the enjoyer, he's But how do you know that he is the proprietor and he is the enjoyer? the source. You have to know it scientifically. Otherwise, you will not make him the proprietor. But You will just remain theoretical proprietor, right? How he is proprietor of, how he is the king of this home. we discuss the hierarchy, how we go back, and he is ultimately we land up that he's the proprietor of. Yes. Tell me practically. Give me any example how God is doer and we are not doer. There are many things that are not in our control, no matter how hard we try. Something went out of control. Lots of times. I mean, it's like if you're thinking, okay, मुझे ये करना है, I want to go there. ऊपर भगवान बोल रहे हैं, हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ क्या करना है. Then who is in control? God. God. Are you in control? Oh my God. That's true. लगता है अच्छा सा ट्यूशन हुआ है. इसका भी कंट्रोल के बाद है ना. वो वहाँ है. क्या है? ये नहीं है. ये तो बेचारे दोनों स्टूडेंट है. का कंट्रोल पीछे है. अभी मैंने 2 जगह पॉइंट किया. Yes. Yeah, when things go out of our control, then we start investigating, introspecting. If I am not in control, then who is in control? See, the power to speak, the power to work, the energy that we have to do anything in this world, from where it is coming? कहाँ से आ रहा है? अभी आप बोल रहे हैं इतना. It is the soul that gives, and that again the soul is getting the energy from the super soul. Okay, that is true, eternal true. But even right now at material platform also you can, even ये तो spiritually आपने prove कर दिया. But even materially also, you see this body which is working. For that we have to eat, isn't it? This is a common sense. Whatever that we eat, we cannot manufacture, isn't it? Although you may be a big businessman, but at the end of the day you will not eat nut and bolts, right? What you will eat? Grains. Grains, they are produced from crops. कोई फैक्ट्री है क्या जहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि हम मशीन में से राइस निकालते हैं बनाकर? कोई है जहाँ से कोई मशीन में से हवा निकालते हैं बनाकर जो पूरे मुंबई को सप्लाई किया जाएगा? या पानी बनाते हम, पानी पूरे मुंबई को सप्लाई होगा? है कोई? तो इवन इन कॉमन सेंस वी कैन सी दैट वी आर नॉट द डूअर. जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वाटर, एयर, फूड, अर्थ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ इज फूड, राइट? उसको जमा करते हैं हम लोग. अब जो पहले आया जिसने कब्जा जमा लिया वो बन गया प्रोप्राइटर. वो कहता है कि ये मेरा है, राइट? दिस लैंड बिलोंग्स टू मी. आपके आने के पहले तो आपका नहीं था ना, किसी और का था. या अगर आपका भी अभी है तो भी you don't survive just on the land, right? You need so many other things which are not produced by you. So even in that sense also you can realize and understand how God is doer. And Prabhupada used to say, you will realize God is the doer when things go out of control.
Especially when you are sick. Do you think you are the enjoyer? Do you think you are a controller? When you fail in your life, do you think that you are the controller? उस समय भगवान को पुकारते हैं, भगवान मुझे एक कंट्रोलर जल्दी से बना दो, एक हफ्ते से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सब कुछ, मेरे जीवन का आनंद खत्म हो गया है, वापस मुझे कंट्रोलर बना दो. You know. So all these simple things in our life will help you realize we are not doer. So although we may remain a businessman, proprietor of any other things, the designation will remain with you. चेंज नहीं होगा. आप अगर किसी कंपनी के मालिक है तो कंपनी के मालिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो भी है, चेंज नहीं होगा वो. बट व्हाट विल चेंज? योर कॉन्शियसनेस विल चेंज. These designations are given to me to render service. Coming back to the same point, ये सब सुविधाएं हमको क्यों मिली है? सेवा करने के लिए, राइट? बराबर है ना? करेक्ट. सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. बट दैट विल गिव यू वेरी बैड कर्मा. एक्चुअली एंजॉयर तो हम कभी बन नहीं सकते. People try to imitate God and try to become enjoyer, and in that way they implicate themselves in very bad karma. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? सेवा करो. और सेवा में भी कैसे सेवा करो? I am not the boss, I am servant boss. सुना आपने कभी सुना होगा ना? Servant leadership सुना है क्या कभी? There is a leadership. You are a leader, but you are servant leader. A king is servant to all the citizens. King is not king. He is promoted to that position because he is able to serve all the citizens, right? So that's why यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं designationless. When we become designationless, yeah, ऐसा specially कहा गया है because designations they attach you to the body, because designations they belong to the body, and when you become attached to the body, you think I am the enjoyer because body demands the enjoyment, right? But when you know that I am not the enjoyer, God is enjoyer, let me serve him, assist him in his enjoyment, in his service, right? So that was first. And then what was the second one? Yeah. Second thing, if you are in that mood, then you can remember God at the time of death. But then there is a question, how to remember God at the end of life, right? So इसलिए हमने देखा था कि व्यासदेव and so many other sages, they have given us Vedic literatures or scriptures. अपना जो thought process है वो भौतिकवादी चीजों से निकालकर आध्यात्मिक चीजों में रखने के लिए शास्त्र दिए गए हैं. रामायण है, महाभारत है, पुराण से पढ़ो ना, सुंदर सुंदर स्टोरीज है, कथाएं हैं. अपना मन वहां पे लगाओ. In that way, you will escape. What you will escape? Enticement given by Maya in the form of cinema, movies, and they are of different grades. Sattvic, Rajasic, Tamasic. बराबर ना? टेलीविजन खोलेंगे तो आपको ये 3 प्रकार के कैटेगरी की चीजें मिलेंगी. Which are in the mode of goodness, which are in the mode of passion, and which are in the mode of ignorance. Like कोई अगर नेचर का वीडियो है, that is in the mode of goodness. Sport, that is in the mode of passion. And वो देखते हैं ना रेसलिंग वाला, that is in the mode of ignorance. तामसिक. So इस तरह से हमारा दिमाग अगर वहां लगा रहेगा तो हम भी इन प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही घूमते रहेंगे. इग्नोरेंस, पैशन, गुडनेस. गुडनेस तो बहुत कम होता है. पैशन एंड इग्नोरेंस, मोस्टली वी आर जस्ट मूविंग अप एंड डाउन बिटवीन दिस 2 मोड्स. एक तो ज्यादा ही पैशनेट हो जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना है वहां जाना है, और उसे थक जाएंगे, स्लीप, इग्नोरेंस. Some ratio of it is also it's okay, or some ratio means what? Goodness.
Yeah, whatever. Goodness is in the morning. Morning early hours are goodness. Goodness and passion. Yeah, there are mixture of it. But I'm saying prominently, cities they are in the mode of passion and ignorance. Especially cities, metro cities, they are full in the mode of passion. So early morning, you are supposed to do some sattvic things like meditation, yoga, exercise, some mindful things. But people what they do? सुबह उठते ही बेड में बैठ के चाय पीते हैं. What do you call that? Intoxication. Bed tea ना? बेड के ऊपर बेड टी. Bed के ऊपर bed tea. मुंह भी नींद होते हैं. You may be taking that. I don't mind. But this is in the mode of ignorance. Why? अभी तक हाथ मुंह भी धोया नहीं है. All the germs within your mouth. तो गर्म पानी जाता अंदर तो हो जाता ना काम खत्म. See, this is what our definition of cleanliness. But Shastras they speak, overall cleanliness. And the consciousness which you carry in the morning, that goes on throughout the day. ये तो ठीक है. लोग सुबह सुबह उठते क्या करते हैं? फोन खोलते हैं. किसने कितना गाली दिया है दिन भर में? किसने इनवाइट किया है किसी प्रोग्राम में? मतलब हम लोग ऐसा देखते हैं. हाउ मेनी लाइक्स? फोटो मैंने डाला था कल. कितने लोगों ने लाइक किया भाई? जिसने लाइक नहीं किया उसको कर्स. अपना नहीं है. The definition of relationship is based on how many likes you get. आजकल तो डिसलाइक दिखता नहीं है. अच्छा हो गया है ना? नहीं किया तो डिसलाइक है. पहले दिखा देते हो डिसलाइक. कितना हार्ट अटैक आता हो इतना डिसलाइक. बट दैट इज अनदर इल्यूजन. लाइक मिला मतलब क्या है? तो आपको सच में लाइक करते हैं क्या वो लोग? राइट. सो इट इज लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई नाउ Read scriptures. sorry, yeah, we have to read the scriptures and bring our mind back from the filth of this world to the beautiful narrations of past tense of the Supreme Lord, holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इसलिए हम लोग अगर सुबह सुबह अच्छा सा साधना करेंगे ना, भगवान के नाम का जप करेंगे, कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, AI अचानक चालू हो जाता है. So that will really help us. And the mode of goodness which you develop early in the morning, that will help you remain in the goodness, or at least try to remain in passion भी थोड़ा बहुत ठीक है. Ignorance is very dangerous. जैसे दिन बढ़ता है ना, दोपहर 12 बजे के बाद पैशन चालू हो जाता है. जैसे संध्या होती है 4, इग्नोरेंस बढ़ता है. देखिए इसलिए जो तामसिक क्रियाएं होती है वो रात को ही होती है. लाइक इंटॉक्सिकेशन, ये सब कसिनोज वगैरह कब चलते हैं? 24 hours. सुबह नहीं चल सकते. या 24 hours, बट प्रोमिनेंटली दे कांट रन इन द मॉर्निंग. क्योंकि मॉर्निंग में गुडनेस इतना रहता है पर्यावरण में, इट विल नॉट एक्साइट यू. होता ही नहीं वो. लोग शराब पीने के लिए कब बैठते हैं? सुबह बैठते हैं क्या? अर्ली मॉर्निंग 7 बजे. चलो. I seen a friend of mine was. They do. Exceptions. A few exceptions. And like it was. I said what? मतलब उनका लाइफस्टाइल ही वैसा है कि पानी की तरह पीते वो लोग. उनका ignorance level high है. It was crazy. लेकिन कुछ लेवल का ignorance अच्छा है. आजकल की दुनिया में. मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा है, होना चाहिए. Ignorance So मतलब you're trying to say another kind of ignorance. You're not saying worldly thing ignorance. हाँ, It's- worldly it's a thought ignorance. Thought What ignorance. she Ignorant about what? Others' problems. Ignorant about what? others problems. Then? मतलब Be specific. जैसे किसी को आप मिलते हैं, अगर you किसी ने feel कुछ very बोला, negative है and किसी ने वो कुछ कुछ बोला negative तो बोल रहे हैं, ignore करना तो वो ignore चाहिए. करना चाहिए for hours. That is another kind of ignorance. That is actually goodness. That is actually goodness. Sign of goodness. When you That you are not bothered about Yes. what somebody said to you, or I mean, what? there are people
I personally know जो बोलते हैं क्या है जब देखो पूजा ये दिन है वो दिन है, they don't like it. उनको बोलने का you be with your puja, we have our puja. Because there will be people like that, and you will face them more often after you start your spiritual sadhana. They will, try to drag you. अरे कहाँ जा रहे हो, आ जाओ इधर. तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए. नहीं, उनको इनवाइट करने का, इग्नोर भी करने का, बोलने का अरे आ जाओ यार बहुत मजा आता है. Call them, so like that. So now इस तरह से हम साधना करेंगे. बट अभी क्वेश्चन था, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन रेज किया था. क्या क्वेश्चन रेज किया था? This fourth point, if you just think of God whole day, then somebody will say, how do I make my living in this world? Isn't it? तो रोजी रोटी कैसे चलेगा मेरा अगर दिन भर में साधना करूंगा, भगवान को याद करूंगा? क्योंकि प्रभुपाद तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अगर भगवान को लास्ट में याद करना है तो जिंदगी भर याद करना पड़ेगा, दिन भर, throughout the day. So how do you remember God at the end of the day or at the end of the life? So that is, that's why, fourth point, that's why Lord Krishna says, work at the same time, remember me. Mam anusmaram yuddhacha. He said to Arjun that you fight the battle, at the same time remember me. Now the question for you may be, ऐसे कैसे हो सकता है? दो चीज कैसे एक साथ चल सकती है? या तो मैं सोच रहा हूँ आपके बारे में, या कुछ अपना काम करने में मन लगा रहा हूँ. Because mind you have to keep somewhere else, right? आप जो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं. You have to see in front of you. Signal, green है या red है. You can't. For me, it is in the subconscious mind. Okay. That throughout the day, I may not be chanting on beats, but throughout the day, the mantra is going on in the head. Yes. So even when you're cooking or doing something, automatically, वो आता है. When you're driving, suddenly you're like, if some thought comes to your mind, so, and it's playing on your mind. So the other day I tried this. I said, if I had asked Prabhuji the answer to this question, what would he say? He would say to chant. And then automatically you start doing it. Because that is the answer that you receive. Subconscious mind and conscious mind. There are two kinds of minds, all of you know. And the conscious mind which you see is only 10% of total mind. 90% is subconscious mind. बराबर ना? तो मेन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है. कॉन्शियस माइंड पेरिफेरी पे रहता है, ऊपर रहता है. जो आपने देखा होगा ना, बर्फ के बहुत बड़े बड़े चट्टानें रहती है, द अंटार्कटिक ओशंस, आइसबर्ग्स, तो ऊपर खाली 10% दिखता है, 90% नीचे होता है. दैट वाज व्हाट टाइटैनिक एक्सीडेंट. बराबर ना? ऐसा दिख रहा था, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सामने गया तो धड़ाम. So our life is also like that. We see 10% and we get attracted. Wow. 10% is not the, all in all. नीचे बहुत कुछ होता है. It's true in both spiritual and material. Sometimes you may see a person, wow, very nice person, very gentle. You do not know. 90% नीचे है. And in case of spiritual also, you may see 10% ही है, but 90% अंदर बहुत कुछ रहता है. Spiritual दिखता नहीं है हमको. So now that is the point कि ये कैसे करेंगे हम लोग. You already given some part of the answer. That is the point number. Yeah, this is the 5th and then 6th, right? कहाँ गया 6th point? Yeah, 5th point rather. ये आपको मिला पैराग्राफ. How is this possible? प्रभुपाद ने लिखा है, मिला? या उसको आप लिख दीजिए ऐसा, कृष्ण चिंतन प्लस कर्म. लिखा है ऑलरेडी आपने? या कृष्ण चिंतन प्लस कर्म कैसे होगा? दैट इज द पॉइंट नंबर 5th. And Prabhupada says, although Prabhupada has given a very graphic example, we may not do like that, but that is the example given by Prabhupada. Prabhupada says, the acharyas give the following example. If a married woman is attached to another man, or if a man has an attachment for a woman other than his wife,
then the attachment is to be considered very strong. One with such an attachment is always thinking of the loved one. The wife who is thinking of her lover is always thinking of meeting him, even while she is carrying out her household chores. In fact, she carries out her household work even more carefully, so her husband will not suspect her attachment. तो अभी यहाँ पे हस्बैंड कौन है हमारे लिए? कृष्ण. Right? And sometimes you will see in some families, not everybody will like what you are doing in spiritual life. They will oppose. तो आपको ऐसे रहना है उस समय. कैसे रहना है? जैसे एग्जाम्पल दिया है. See, Acharyas give this example because this attachment is very strong. The level of attachment उसका ग्रेविटी बताने के लिए उदाहरण दिया है. हमको इसको फॉलो नहीं करना है. But I will give another example. जब आपके बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं अभी कि कृष्ण चिंतन प्लस कर्म कैसे एक साथ होता है. आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे होते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं और आप घर में अपना घर का काम करते रहते हैं, हाउस होल्ड योर ड्यूटीज यू आर डूइंग, बराबर, डू यू रिमेंबर देम और नॉट? याद करते हैं ना? घर के काम करते करते याद करते हैं ना? और अगर ये तो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, अगर बच्चे का कुछ कपड़ा है उसको देख लिया, मेरे बच्चे का कपड़ा है, बच्चा किधर है, या उसका खिलौना देख लिया. नाउ यू कैन अप्लाई दिस एग्जांपल टू एनी अदर रिलेशनशिप दैट यू मे वांट टू. जो भी आपका काका मामा अंकल आंटी चाचा पति पत्नी जो भी रहेंगे, you remember anything by seeing anything associated with that person, you remember that personality, isn't it? याद आता है कि नहीं? नीलेश प्रभु, are you there with us? ये क्या लगा के आए आज आप? For what? सनबर्न. सनबर्न होता है. तो कल अगर Please do it. Okay. Acceptable case, sir. He is actually remembering someone else. Looks like. He is not very. So, He is remembering. He is giving us the example how to remember. My sister. Why? She just passed away. Yeah. Oh, see, subconscious mind is very powerful. Even though the person is not there, but still you remember. Because of what? Because of attachment. आसक्ति ये बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इवन इन द भगवत भक्ति. बिना आसक्ति के हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते. जिस तरह से इस संसार में हम आसक्ति की वजह से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं. A mother is remembering a child. Why? Because she is attached to the child. And no one can be more attached than a mother. बराबर ना? Father is attached or not? Huh? To some extent. Rest? नहीं? Okay. Okay. So, water? Yeah, please. Feeling hot? no, it was feeling cold, so I switch off the AC and I switch on the fan. So you got the answer? Yes. Like What answer you got? Once you're like you're in the office, maybe like you're attached to the Lord, you can have any his photograph in front of you, or you remember it. It's that you start doing the work, so you can remember it simultaneously. Yes. Just like a mother is attached, You can a do it. father is attached, a lover is attached to the beloved. Yes.
जिस चीज से आसक्ति होगी उसको आपको ऑटोमेटिक याद आएगा. Like आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि अरे याद करो अपने बच्चे को. sometimes in our office also we play some chanting that is going on in the background, and sometimes when we are doing our work and the chant is already on, and we are already doing our work with it. So the name is also there, and we are doing our work. Yeah, these are the ways. Yeah. this is- So now we are coming to the part, how do you do that? एक माता का बच्चे से अटैचमेंट कैसे डेवलप होता है? Because she's given birth to the child, so definitely that more attachment is Yes. there. और क्या होता है? Now, अच्छा चलो ये एक बच्चे का उदाहरण हो गया. Let us take an example of a man and a woman, because you can relate. yes, I mean, you all can relate. yes. How a relationship develops between the two? Attraction first happens in attraction. Yeah. Okay, first attraction. Yes. First क्या बोलते हैं वो? First sight. क्या वो कुछ सर ये सब भगवत गीता में कहा ये सब you are referring to. I am coming to the point. Wait for a few minutes. You will come to a point and conclusion whereby we are practically trying to understand how to develop love for the God. Without examples, you cannot understand. Yeah, understand. Yeah, you can understand, but I want you to understand more deeply. Not that we are. See, ये example प्रभुपाद ने हमको purport में दिए. Example से समझ में आता है. Yes. Then it is related to something different. Yes. So how? See, and these examples are not given by me. Prabhupada says acharyas. Acharya means what? Our parampara acharyas like Madhvacharya, Ramanacharya. They have given these examples. And why they have given such examples? You may question. Coming back to Because we have these experiences. उनको हमारे लेवल पे आके काम करना पड़ता है. Not that they have done anything like that. But because we can relate only to these examples, they are coming to these examples. Otherwise, you won't understand. Right? So how does the love develops? First is attraction, right? You see someone. So when you go to the temple, what do you do? bow down and No. First thing, what do you do? you see the God. Yes. See, I am connecting. Hare Krishna. When you see the Lord, that is called as deity darshan. बराबर भगवान को आप देखते हैं. Same thing is happening with your worldly, relationships and contacts. आप किसी को देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. यहाँ भी हम भगवान को देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. दर्शन. Then next what do you do? अभी किसी को अगर देख लिया आपने, अच्छा लगा. Next what do you want to do? Chant his name. इंटरेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? बात करना चाहते हैं. सॉरी, एक एक नंबर मतलब उसका नंबर yeah. Similarly here also you want to speak to God. What do you do? उनका नंबर लो. उनका नंबर क्या है? उनसे प्रे करते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Your kind of brother. ये उनका नंबर है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान से बात करना है, रोज डायल करो एटलीस्ट 1 माला, नहीं तो भगवान से बात नहीं हो पाएगी. एंड इन दिस एज ऑफ कली देयर आर नो अदर मीन्स टू कॉन्टैक्ट गॉड एज क्विकली एज पॉसिबल. इसलिए शास्त्र में कहा गया हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा. कलयुग में भगवान के नाम के अलावा भगवान के पास पहुंचने का दूसरा तरीका नहीं है. There's no other way. No meditation, no yoga, not by charity, not by donation, not by big sacrifices. So, just a small example. People go for meditation, try to meditate and go within themselves. And they go for hours, days and months. What is When you that? don't talk to anyone. Anybody. So what is that? मैं तो कभी रिकमेंड नहीं किया. मोदी is नहीं doing now, कुछ no? करते हैं. Modi is doing for different reasons that let us not, So, he is all glorious, we respect him, and he is doing what he is doing. so those result in only growing themselves from within, or I am not saying that they are totally fail. I am not saying that these methods are totally fail. Charity,
or meditation, yoga. I'm not saying that they are not bona fide methods. They are bona fide methods, but for this age, the only method that will work efficiently, effectively and immediately, and that is chanting of the holy names of God. और ये क्यों दिया गया है ऐसा? अभी कितने लोग हैं मुंबई में जो मेडिटेशन कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग योगा कर सकते हैं? कितने लोग ध्यान में बैठ सकते हैं? और कितने लोग डोनेशन दे सकते हैं? कोई बोलेगा कि डोनेशन देना ही भगवान के पास जाने का तरीका है। और कितने लोग सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं? कितने लोग सेवा दे सकते हैं? बताइए आप मुझे। नहीं कर सकते ना। These are all bona fide methods but not practical in this age. The only practical way and method is chanting of the holy names, because that anybody can do. There is no expense, no energy wasted, or not much energy required. कितना चल रहा है? महामंत्र बोलने के लिए कुछ एनर्जी लगता है क्या? बड़बड़ करने के लिए बहुत लगता है, गॉसिप करने के लिए बहुत टाइम लगता है, right? That's why it is recommended and given by the acharyas. 4 जो युग रहते हैं ना, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सतयुग, उस टाइम में मेडिटेशन प्रोसेस था। When everything was so peaceful, 100% population was religious. फिर वो उसका डिग्रेडेशन होता जाता है, 100 का 75 का नेक्स्ट एज में फिर 50, फिर कलयुग में खाली 25% रिलीजन है। वो भी कितना है, कैसा है, हौच-पौच है, आप सबको मालूम है। So in the Satyuga there was a method of meditation. त्रेता युगा there was a method of sacrifices. बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उससे भगवान की प्राप्ति होती थी। इन द्वापर युगा elaborate deity worship, भगवान का अर्चना, बड़े बड़े मंदिर, भगवान के विग्रहों की सेवा। एंड इन कलयुगा ना कोई बड़े मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आप घर में कितना बड़ा मंदिर बनाएंगे आप, और बनाएंगे तो भी प्यूरिटी कहाँ है? हम जो सेवा करेंगे उसमें शुद्धता कितनी हमको ही पता है ना। बड़े सैक्रिफाइसेस कर पाएंगे ना, ध्यान कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सिंपल कलयुग में क्या करो, जस्ट चैंट माय नेम्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड बाय दैट वे यू विल कनेक्ट एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट, इजंट इट? Yes. मैं कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं बोल रहा हूँ, यू आर एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट योरसेल्फ। सो इसलिए पहला डेटी दर्शन होता है, देन फोन नंबर चेंज होता है। You get the phone number, then you start speaking. अच्छा, अभी इतने समय बात रुक जाती है क्या? खाली बोलने से काम चलता है क्या? If you really love someone, then you want to serve. Yeah, share also and serve also, right? Yeah. Then you do these things. अब क्या करते हैं फिर? सेवा करते हैं। अगर सचमुच प्रेम है तो सेवा करेंगे। डुप्लीकेट प्रेम है तो क्या होता है? Love in first sight, divorce in। इस संसार में आजकल बहुत ऐसा होता है, बिकॉज देयर इज नो ट्रू लव, राइट? लोग प्रेम नहीं करते हैं, वो जस्ट एक्सटर्नल जो फसाड रहता है उसके पीछे लोग पागल रहते हैं। सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे जो कहा गया है, दिस इज द वे टू डेवलप लव फॉर द गॉड ऑल्सो। यू टेक द दर्शन ऑफ द लॉर्ड। जिसको बार बार देखेंगे उससे प्रेम तो होगा ही ना। किसी व्यक्ति को बार बार देखेंगे, ये होता है एक्चुअली, आपके कुछ मन में नहीं रहेगा ना, कुछ आपको किसी से कुछ करना है, लेकिन एक व्यक्ति को बार बार देखेंगे तो उसके प्रति कुछ ना कुछ अफेक्शन डेवलप हो ही जाता है। ये इंक्वायरी होती है, कौन है आप, कहाँ से आए हैं, कुछ सेवा करना है आपको, मदद करना है आपको, बाय डिफॉल्ट आता है हमारे अंदर। आपके सिक्योरिटी गार्ड को आप रोज देखते होंगे ना, यहाँ पे रोज देखते हैं ना। कुछ लगता है मन में? कुछ नहीं लगता है, बट यू फील ना, या यू फील oh they are so nice, they are serving, ऐसा लगता है ना हमको, isn't it? कुछ ना कुछ एक भाव मन में आ जाता है। तो विचार कीजिए, जिसके साथ टारगेट करके हम बात करते हैं कि इसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो हम दर्शन लेते हैं उसका, बात करते हैं, सेवा करते हैं, एंड देन दुख रहेगा वो बांटते हैं, कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, राइट? सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सुनना, और हमको उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है ना, जिसके साथ आपका अफेक्शन रहेगा उसके बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं आप, क्या करता है वो, कहाँ जाता है, उसके क्या क्या क्वालिटीज हैं, बराबर कि नहीं? तो वैसे ही जब भगवान से प्रेम होना चालू होता है
तो आप भी भगवान के बारे में सुनना चाहते हो, और भगवान के क्या क्या गुण है, भगवान के कौन कौन सी लीला है, भगवान के कहाँ कहाँ धाम है, भगवान ने कैसे कैसे ना अवतार लिए हैं. आई वांट टू हियर, आई वांट टू लिसन मोर 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 मोर. एंड गॉड इज एब्सोल्यूट. गॉड इज नॉट लाइक एनी अदर मंडेन. इन दिस, इस दुनिया में एक व्यक्ति के बारे में सुनना चाहें तो कितना सुनेंगे आप? अगर किसी से प्रेम हो भी जाता है, कितना सुनेंगे आप उसके बारे में? कितना रहेगा अट्रैक्शन? कितने दिन रहता है? हाँ, हमेशा रहता है. आर यू मैरिड? अनमैरिड? ओके. कुछ कुछ रहते हैं, जेन्युइन रहते हैं. या बट एक हमारे सन्यासी थे, उनको एक बार प्रश्न पूछा था, मतलब उन्होंने खुद प्रश्न पूछा. इज ए वीक सन्यासी. उन्होंने गृहस्थ को प्रश्न पूछा कि डोंट मिसअंडरस्टैंड अगेन, उसका पर्पट भी दूंगा मैं आपको. उन्होंने प्रश्न पूछा कि अच्छा, मैरिड लाइफ का एंजॉयमेंट कितने दिन रहता है? तो वो गृहस्थ थे, इज वेरी सिंसियर, उन्होंने 2-3 प्रकार के आंसर दिए. एक आंसर उन्होंने दिया 1 महीना. कितना? 1 month. He was very genuine. He said 1 month. फिर उसके बाद क्या? उसके बाद सेवा. क्योंकि प्रेम अगर है तो उसका ट्रांसलेशन किस में होना चाहिए? सर्विस में. तभी तो प्रेम है मालूम पड़ेगा ना. बिकॉज आफ्टर सम टाइम देयर इज ओनली सेवा. वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, क्या क्या दिखाते हैं यार फिल्मों में, ऐसा एकदम ऐसा मतलब कि आपके बगैर तो मैं रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी. कितना दिन चलता है वो? तथाकथित अगर वो रहेगा एट अ वेरी सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म, दिस कैन नॉट गो ऑन अनलेस यू सर्व. इसलिए आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों होते हैं? बिकॉज नोबडी वांट्स टू सर्व. और सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने अहंकार को पीछे रखना, सामने वाले को ही मौका देना. नॉट दैट ऑलवेज आई एम राइट. सामने वाला भी राइट हो सकता है ना. इसलिए तो मैंने यहाँ पे प्रभुपाद पहले क्या कहे हैं? बी डेजिग्नेशन लेस. यू मे बी अ हस्बैंड, मे बी अ बिग बॉस इन द ऑफिस, बट व्हेन यू कम बैक टू द होम, यू आर नो मोर बॉस, यू आर दास. राइट? दास ऑफ हू? दास ऑफ योर वाइफ, योर चिल्ड्रंस. यू आर सपोज्ड टू सर्व देम. तो उसने वो डिवोटी ने जेन्युइनली कहा कि 1 महीना महाराज, बोले उसके बाद सेवा. अगर सेवा भाव नहीं रहेगा तो वो रिश्ता टूट जाएगा. और आज यही संसार में हो रहा है. कोई भी सेवा नहीं करना चाहता है, खाली बॉस गिरी करना चाहता है, तो कैसे सर्वाइव होगा रिलेशनशिप? प्रीवियसली इन द वैदिक टाइम्स जो मैरिजेस होते थे, उसमें तो पहले मालूम है ना आपको कैसे मैरिजेस होते थे? माता पिता ने कह दिया ये आपके लिए है, पता था ना, ऐसे मेरे लिए है वो. ऐसा नहीं होता था. अच्छा मैं देखता हूँ पहले कैसा दिखता है, कितना कमाता है, क्या करता है, वो सब माता पिता ने देख लिया. अभी आपको देखने का जरूरत नहीं है. ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने आप को देखा भी नहीं था. वरमाला की टाइम देखा. मतलब पहले अरेंज मैरिजेस हुआ करते थे ना. लव मैरिज के ऐसे किस्से होंगे, बट जनरली अरेंज मैरिज मतलब क्या है कि यू हैव अ फुल फेथ ऑन योर पेरेंट्स कि वो मुझे देंगे, बेस्ट देंगे. राइट? उन्होंने कहा 1 month. और एक डिवोटी को पूछा उन्होंने, वो इससे भी ज्यादा प्रामाणिक था. उसने बोला, ही सेड महाराज जी, जब तक शादी का पंडाल जो रहता है ना, शादी होने के बाद जब जैसे पंडाल निकलना चालू होता है, फोटो खींच के हो जाते हैं सब खत्म. जहाँ फेसबुक में फोटो पोस्ट हो गए, सोशल मीडिया में चले गए, वरमाला. ऐसा क्यों? उन्हें क्यों कहा पता है? क्योंकि आजकल लोग शादी के पहले सब कुछ कर लेते हैं, मिल लेते हैं. शादी फॉर्मेलिटी होता है खाली. सब कुछ पहले हो गया तो फिर अभी क्या शादी के बाद है? कुछ एक्साइटमेंट है क्या आपका? एवरीथिंग यू नो बात करना, मिलना, ये सब. सो दैट्स व्हाई देयर आर वेरी बिग लॉन्ग गैप. तो पहले के जनरेशन वाले लोग बोलते हैं कि यार क्या है सब आजकल, यू डोंट नो क्या हो रहा है. आजकल लोग बोलते हैं कितने पुराने लोग यार आप लोग. मॉडर्न, बी मॉडर्न. व्हाई? बिकॉज ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते. तो हम बेसिकली ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके भगवान के साथ इस तरह से आसक्ति जब डेवलप करेंगे, डीटी दर्शन एवरीडे,
That's why every day we have deity darshan in the temple. Every day we have to chant for 2 hours, 16 rounds. Every day we have to read Bhagavad Gita, Bhagavatam. Every day we have to serve. Every day we have to explain someone about Bhagavad Gita, chanting. ऐसा सेवा करेंगे. आज विचार कीजिए, इस दुनिया में हम किसी का सेवा करते हैं तो कितना कृतज्ञ होता है व्यक्ति हमसे, नहीं? तो भगवान कितना कृतज्ञ होते हैं जब हम सेवा करते हैं. तो भगवान का कृतज्ञता कोई बिजनेस वाला नहीं है कि अरे उसने कुछ दिया तो मैंने सेवा किया. नहीं, ही इज जस्ट अनकंडीशनली लुकिंग फॉर आवर लव. थोड़ा भी सेवा करते हैं ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं. स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाते, गीता में आएगा 2nd चैप्टर में. एंड दैट्स हाउ इन दैट वे you can always remember God. Is that clear or not clear? If you're not hurting someone, वो भी एक तरह की सेवा है. Yeah. Not hurting, but we want practical service. We don't hurt, but then do something good to them. That is positive side. Not hurting is just being neutral. वो बोलते हैं ना, आप खुश रहो, हमें खुश रहने दो. बट आपको खुश रहने के लिए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? प्रोएक्टिवली आगे जाके करना. देन दैट बिकम्स रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है फिर. Isn't it? So here we spoke about first one was DD darshan and then this chanting. Yeah, whatever you like in this. There are 9 limbs of devotional service. 9 limbs. We are beginning with hearing because that is most important. Shravan. आप ठीक से सुनिए भगवान की कथा, भगवान का नाम. Then you repeat that. That is called kirtanam. Then you chant. Shravanam kirtanam. Then you can remember. देखो, भगवान को जब तक आप सुनोगे नहीं सबसे पहले ठीक से और खुद उसके बाद रिपीट नहीं करोगे, आप याद नहीं कर पाओगे उनको. एग्जाम कैसे आप याद करते हैं? आप पहले टीचर से सुना ना, टीचर से सुना या टेक्स्ट बुक में से सुना, राइट? टेक्स्ट बुक में से पढ़ना मतलब सुनना ही है, राइट? आप क्या करते हैं? पहले सुनते हैं या पढ़ते हैं, जो भी, इधर सेम. देन यू रिपीट ना, रिपीट करते हैं ये फॉर्मूला ऐसा, ये वैसा, व्हाटएवर. आफ्टर दैट देन यू कैन रिमेंबर इन द एग्जाम. बराबर ना? तो कैसे रिमेंबर कर पाएंगे आप? सो दैट्स व्हाई श्रवणम, एंड दैट्स व्हाई टू द एक्सटेंट आवर हियरिंग इज स्ट्रांग, chanting is strong, to that extent you will be able to remember. जितना ज्यादा तीव्रता और अच्छे तरह से करेंगे उतना याद कर पाएंगे फिर, और फिर आगे का नेक्स्ट चालू होगा. ये तो मैंने अभी किसी को कुछ कहा नहीं है. श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम के बाद अर्चनम चालू होता है, यानी कि वर्शिप ऑफ द लॉर्ड. व्हेन यू आर इन लव विद समवन, यू वांट टू वर्शिप देम. देखा नहीं आपने, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, मालूम है आपको, कलकत्ता में. और किसका किसका है? हाँ, रजनीकांत का भी है. हाँ, क्यों हो गया उनका मंदिर? क्योंकि लोगों ने इतना सुना है उनके बारे में, मूवीज से इतना सुना है और उसको रिपीट किया है कि स्मरण होता है और फिर उनकी पूजा करने की इच्छा होती है. दिस टेंडेंसी is within every one of us. The only problem here is that when we worship these people, they will not do anything to you. I mean, they can't benefit you anything. But when you worship God, you will become pure and get liberated from material entanglements, and your karmic reactions will get over. Right? So this is the point. समझ में आया सबको? This was point number 5th. We have time? Yes, we have. Yes, we have time. So now अभी 2 ही पॉइंट बच गए इसमें. देन ना, अभी इतने में पूरा नहीं होता है काम. मैंने इसलिए कहा ना, दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू बिकम डिवोटी. ये प्रभुपाद का जो आपने जो लिख के रखा है ना, इसको ठीक से पढ़िए और इसको फॉलो कीजिए. नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन लेते हैं, चलेगा ना? PowerPoint presentation. नो, नॉट लाइक दैट. योर प्रेजेंटेशन, यू विल प्रेजेंट इट. तो अब यहाँ बोलेंगे अच्छा इतना आसान है चैंटिंग करना और ये करना और मैं भगवान का भक्त बन जाऊंगा, एंड देन इस तरह से मैं जीवन भर अगर भगवान को याद कर पाया तो जीवन के अंत में भगवान को याद कर सकता हूं मैं. इज दैट सो इजी? वाओ. बट देन यू हैव सीन सो मेनी डिवोटीज स्ट्रगल. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ great personalities who have attempted to reach God but they have failed many times.
You know the story of Vishwamitra Muni? You don't know? But there are many stories. अरे अपना ही स्टोरी पकड़ लो. हम कितना प्रयास करते हैं भगवान के पास जाने का, बट कितना हम लोग गिरते रहते हैं, कितना माया हमें खींचती रहती है, कितना कोशिश करते हैं भगवान के पास जाने का, खींचती रहती है. ये क्या है, टग ऑफ वॉर चालू है अभी. अभी आप यहाँ खड़े हैं, इधर माया है, इधर कृष्ण है. नॉट कृष्ण, रादर समवन एल्स दैट वी विल एक्सप्लेन हियर. बट इधर से कृष्ण खींचते रहते हैं, आ जाओ. इधर से माया खींचते रहती है, आ जाओ. और माया लुक्स मोर अट्रैक्टिव. Why? Because Maya is just in front of you and you are able to see her. Krishna you can't see right now, you can just hear. अभी आपको ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है जिसको आप अभी देख नहीं सकते लेकिन सुन रहे हो उसके बारे में. बड़ा डिफिकल्ट है ना. और माया तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और वो सामने खड़ी है और आ जाओ प्रभु कहाँ जा रहे हो, ये सब मंदिर मंदिर चक्कर में पंडित बाबा कहाँ बन रहे हो, ये सब आपके लिए नहीं है, ये बुढ़ापे में किया जाता है. ये सब बच्चों का और जवान लोगों का काम नहीं है. बच्चे खेलते रहो, जवान लोग एंजॉय करो लाइफ को. ये सेंसेस, ये माइंड, ये बॉडी किस लिए दिया है? एंजॉय करने के लिए दिया है. जब बूढ़े हो जाओगे, इनवैलिड हो जाओगे, कान काम नहीं करेगा, आंख काम नहीं करेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, तो मेरे पास आना, मतलब भगवान के पास जाना. ऐसी माया बोलेगी. तो क्या फायदा बुढ़ापे में जाके, क्या फायदा फिर जब देख नहीं पाओगे भगवान को, जब सुन नहीं पाओगे, जब उनको स्मरण नहीं कर पाओगे, तब जाके क्या फायदा है आपका. राइट? तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सीरीज, द 6th पॉइंट, दिस पैराग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. मिला आपको वो पैराग्राफ? ये वो जो श्लोक है ना, ये एक पेज पूरा क्रॉस करके जाइए आप उसको. न, ये जो उसके भी आगे एक श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन. अभ्यास योग युक्तेन. हाँ, चेतसा नान्य कमिना, अभ्यास योग युक्तेन. मिला? उसके ऊपर आप टाइटल दीजिए हाउ टू बिकम डिवोटी. राइट? एंड दैट इज अवर पॉइंट नंबर 6. हाउ टू बिकम डिवोटी. हाउ टू बिकम डिवोटी और हाउ टू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन. उसका आंसर है टेक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड डिवोटीज. टेक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड डिवोटीज. सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है. यहाँ पे आप एंड तक पहुंच गए, आपको लगा कि मैं तो पहुंच गया एंड तक. नहीं बाबा, अभी तो असली काम शुरू होता है. जितने भी पॉइंट अभी बताए हमने, उसको अप्लाई करने के लिए आप अकेले खुद नहीं अप्लाई कर पाओगे. आपको कौन मदद करेगा? डिवोटी, यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर और मेंटर, दैट यू से ना, और काउंसलर. इसलिए प्रभुपाद में लिखते हैं, this is not a very difficult process, however one must learn it from an experienced person. Tad vijnanartham sa gurum eva avigachet. One must approach a person who is already in the practice. अभी आपको, अगर आपको क्या बनना है अभी, मतलब आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स और फाइनेंस. हाँ, उसमें आपको एक्सपर्ट होना है ना. तो मेरे पास आके बनेंगे क्या? आप नहीं बनेंगे. क्या बोलेगा? हरे कृष्ण. आपको किसके पास जाना पड़ेगा? Those who are already expert in economics and finance. बराबर ना? Is the practical thing. So similarly, when you want to chant nicely, become spiritual, become sattvic person, किसके पास जाना पड़ेगा? Those who are practicing that. All these devotees, they are practicing. So we all have to come together. ये simple science है. लोग इसको बोलते हैं ये सब क्या है, ये सब अंधश्रद्धा है. ये अंधश्रद्धा है, आपने देखा है? सब परफेक्ट साइंस भी करते हैं. मतलब आजकल लोगों को लगता है वो उसको पैसा चाहिए और इसीलिए पूजा कर रही है. हाँ, तो उनको पूछना कितना पैसा दिया है मुझे. नहीं, ये बोलते हैं लोग. वो वही लोग पूजा करते हैं जिनको पैसा चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है ना अभी हम किस तरह साइंटिफिकली देख रहे हैं. हाउ इट इज अ साइंस. इज दिस एनी से रिलीजन है, बट रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंट. आज तक भारत में लोग क्या भावुक है, मैं धार्मिक हूँ, मैं हिंदू हूँ. अरे लेकिन आप हिंदू है क्या है? आप क्या है? आपको मालूम है क्या? मैं खाली भगवा हूँ क्या? लोग भगवा झंडा उड़ाते हैं. अरे समझने की कोशिश करो कि भगवे के पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या साइंस है, आप कौन हो. एजुकेशन नहीं होगा ना तो रिलीजन बर्बाद हो जाएगा एक दिन. दैट्स व्हाई हमारे पुराने जो आप देखेंगे भारतवर्ष में, एवरीवेयर दे यूज्ड टू रिसाइट भागवत, रामायण, महाभारत, ये सब पारायण होते थे.
गांव गांव में, गली गली में। आजकल क्या होता है, धर्म मतलब क्या है लोगों के लिए? धर्म मतलब एक डेजिग्नेशन हो गया है, कुछ हद तक ठीक है, बट अगर उसको आपने साइंटिफिकली नहीं समझा तो आप एक दिन लोग आपको डिफीट कर देंगे। लोग आपको बोलेंगे क्या तुम्हारा भगवान मूर्ति को पूजा करते हो? क्या आंसर है आपके पास? आंसर चाहिए ना कुछ तो। ये क्या बड़बड़ते रहते हो हरे कृष्णा? आंसर चाहिए ना। आपको आंसर मिले कि नहीं मिले अभी तक? मिले कि नहीं मिले आंसर? JOSD कोर्स से लेकर अब तक आंसर मिलते जा रहे हैं ना। दैट्स व्हाई यू आर कंटिन्यूइंग ना। तो लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, तो दिन में 5 बार क्यों चिल्लाते हो? उसको आकार है, उसको रूप है, तभी सुनता है, तभी तो चिल्लाते हो ना आप। तो हम भी चिल्लाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दैट्स व्हाई वी नीड एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड टू गाइड अस। बिना उसके हमें नहीं मिलेगा अध्यात्म, राइट। सो इस तरह से वो सेक्शन पूरा हो जाता है। दैट वाज पॉइंट नंबर 7, हाउ टू अटेन किंगडम ऑफ गॉड और हाउ टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। इस तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हम आध्यात्मिक बन सकते हैं। गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द फाइनल। इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, सबको असाइनमेंट है ये। कोई भी पॉइंट किधर भी पूछ लूंगा मैं अचानक। हाँ, ये प्रेजेंट करेंगे आप, तो इसको पढ़ेंगे तो सभी समझ में आएगा ना। नहीं तो क्या है ये, अपना क्या स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है क्या? नहीं ना। इस तरह से एंड देन उसके बाद 8th और 9th पॉइंट है, उसको एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, दैट जस्ट यू राइट डाउन। 8वां पॉइंट उसके आगे स्टार्ट होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में। वो पैराग्राफ है ऐसा जो लिखा हुआ है, या सॉरी उसमें ना एक सुंदर चीज पढ़ना रह गया। प्रभुपाद कहते हैं वो हाउ टू टेक गाइडेंस फ्रॉम डिवोटीज। प्रभुपाद कहते हैं द माइंड इज ऑलवेज फ्लाइंग टू दिस एंड टू दैट, बट वन मस्ट प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड ऑलवेज on the form of the Supreme Lord Sri Krishna or on the sound of his name. The mind is naturally restless, going hither and thither, but it can rest in the sound vibration of Krishna. One must thus meditate on Paramam Purusham, the Supreme Personality of Godhead, the spiritual kingdom, in the spiritual kingdom, the spiritual sky and the attaining. After that, जो point start होता है ना, the ways and the means, मिला? That is the 8th point. Bhagavad Gita is for everyone. इतना सब बताने के बाद प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता इज नॉट जस्ट फॉर हिंदू, नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम और क्रिश्चियन, और वो इज मेंट फॉर एवरीवन। भगवद गीता इज यूनिवर्सल, भगवद गीता इज फॉर एवरीवन। वो आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, इन कंक्लूजन भगवद गीता इज ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। पैराग्राफ मिला आपको? नेक्स्ट आगे, इन कंक्लूजन मिला? In conclusion, Bhagavad Gita is a transcendental literature. मिला? Yes. That is your 9th point, गीता महात्म्य। तो गीता महात्म्य के श्लोक दिए हैं 9-10, आप पढ़ सकते हैं उसको। And like that, introduction ends and our journey starts. गीता महात्म्य का जैसे एक श्लोक पढ़ेंगे वहां पे, कहाँ चला गया? हाँ, वर्स नंबर 3, गीता महात्म्य 3। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। वन में क्लींस हिमसेल्फ डेली बाय टेकिंग बाथ इन द वाटर। बराबर है ना? रोज नहाते हैं हम लोग। एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या होता है? एक दिन क्या, दिन में अगर 2-3 बार अगर है ना, सुबह शाम जो भी ऑफिस से आते स्नान करते नहीं करें, और स्पेशली इन द समर सीजन बॉडी स्टार्ट्स थिंकिंग। सिमिलरली माइंड को अगर हम नहाएंगे नहीं रोज, माइंड स्टार्ट्स स्टिंकिंग विद व्हाट? लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, इल्यूजन, मैडनेस, प्राइड। इसे स्टिंग करना चालू करते हैं माइंड। एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट मोर एज यू गो ऑन चैंटिंग। हम चैंटिंग करते हैं कुछ दिन तक, पीस लगता है, माइंड काम लगता है। एंड देन व्हेन यू गो टू जापान एंड डोंट चैंट हरे कृष्णा फॉर 2 weeks and then you come back, oh my god, my mind has become so monster. That's why I told her. You'll be taking the beats. And you will take the Gita also. Yes, फिर हॉलीडे करें भी जाओगे।
जस्ट मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप जाओ. This is on a lighter We note. should not take the Gita. हाँ, Why? वो मंदिर में रखते हैं ना ऐसे ही, नहीं, नहीं, तो नहीं, वहाँ नहीं, पे नहीं, लोग carry भी नहीं कर। खाएंगे. No, you can carry. You can carry. You can always carry. Now Gita is our life and soul. You'll be in my back. Just like you cannot live without your beloved, Yeah. you cannot live without Gita and your beads. They are your life. मेरे मंदिर में रखा हुआ है. नहीं नहीं, गीता कहीं भी लेके जा सकते हैं. Anyway. See, इतना ध्यान रखिए. Our spirituality is very practical, and our sages in the past, they have not given these books for us just to keep in the altar. ये तो आप रखे हैं, पढ़ते भी हैं. कुछ लोग तो लाल कपड़े में बांध के रखते हैं. पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है. अरे पवित्र है, लेकिन उससे आपको पवित्र बनाने के लिए दिया है. एक बार मेरे को व्यक्ति मिले थे, वो बोले कि मैं गीता बांट रहा था ट्रेन में, तो मैं बोला कि सर भगवत गीता लेंगे आप, 150 रुपये का, ये आप लीजिए, पढ़िए अच्छी तरह से. तो पहले उसको लगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो पैसा कमाने आए. मैं बोला अरे भाई मेरे 150 रुपये में तेरे को ऐसी किताब मिलेगी क्या बाइंडिंग कलर प्लेट्स के साथ? तो मैं समझा, तो समझ गया. बाद में बोलता है स्वामी जी क्या है ना, मछली खा के आया हूँ मैं. मैं बोला मछली खाए तो क्या होगा? नहीं, उसको छू नहीं सकता, पाप लगेगा. मैं बोला अरे भैया मछली खाया ना तो तेरे लिए ये पक्का है. जिसके बॉडी में गंदा गिरा है उसको स्नान करना पड़ता है ना, जो गंदा हो गया उसको स्नान करना पड़ता है ना. तो हम अगर गंदे हुए हैं तो गीता हमको स्नान दिलाने के लिए है. तो गंदे सब है, खाली वो मच्छी खाने वाला नहीं. एवरी वन ऑफ अस आर डर्टी with our mind stinking with lust, greed, anger, envy, illusion, madness, pride. इसको साफ करना है तो दुनिया में आज तक ना कोई बना सका है, ना कोई बनाएगा. कोई दवाई नहीं है. मुझे आप बताइए मेंटल स्ट्रेस का कोई दवाई मिलेगा आज तक किसी को? वो है ना, दवाई है. वो केवल टेम्पररी है. फार्मा वाले सब दवाई बनाते रहते हैं इसलिए। और वो भी क्या है मालूम है आप? अच्छा, यूर इन फार्मा, Manufacturer medicine. तो उसको ही मालूम है उसको कितना काम करता है. उसको मालूम है उसकी दवाई कितनी काम करती है, राइट? See all these and ये क्या होता है ना कि वो आपको एडिक्ट बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है उसके ऊपर. आपका बिजनेस है, बाहर सीक्रेट नहीं बताएंगे. बट वी नो द ट्रूथ. डिपेंडेंसी. इसलिए आप अगर किसी को एंटी डिप्रेसेंट देना चाहते हो ना, सबसे बेस्ट तो उसको महामंत्र दो. टेल हिम टू चैंट हरे कृष्णा एंड यू कैन. भगवान को मानती ही नहीं है तो क्या दे महामंत्र. नहीं, आप उसको ऐसे बोल के देने का ये दवा है, बोलने का ये मंत्र है, बोलने का ये ना साइंटिस्ट लोगों ने दिया है. But one thing अब मैंने ऊपर एक है ऐसे क्लोज टू मी, वो ये बोलती है, जब मैंने पूछा तुम भगवान को मानती हो? नहीं, आई डोंट बिलीव इन गॉड. लेकिन मैं कभी कभी मंडे को मंदिर जाती हूँ, क्योंकि वो शंकर भगवान की बुक आई थी ना, एक आमिष की पार्टी ने लिखी थी. तो शंकर भगवान मुझे ठीक ठाक गॉड लगते हैं, तो मैं कभी कभी मंडे को चली जाती हूँ उनके दर्शन करने. तो ऐसे इंसान को ठीक ठाक गॉड लगते हैं मतलब क्या है? कि मतलब इंटरेस्टिंग है, वो बुक पढ़ी है. ठीक ठाक लगते हैं मतलब भगवान भी ठीक ठाक लगने चाहिए. नहीं, बट एक्चुअली ये हुआ है, ये ट्रेंड हुआ है. जब वो ये सब- शंकर भगवान की बुक आई, मेरे आसपास मेरे- बहुत लोग थे जिन्होंने जो स्पिरिचुअल हो गया अचानक. नहीं, जिन्होंने ऑल ऑफ अ सडन वो बुक पढ़ी एंड दे फेल्ट हाँ शंकर भगवान बहुत कूल गॉड है. stupidity. बिकॉज वो उसमें बताते हैं कि वो चिल्लम वगैरह पढ़ते थे, अरे वो बहुत कूल भगवान है. सी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब दे हैव स्पॉइल्ड द रिलीजन. ये देवधर पटनायक वगैरह सब है ना, जो भी लिखते हैं बहुत सारे, दे आर रियली, आई मीन आप वर्शिप करते होंगे उनको पहले, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ट्रू परंपरा एंड रिलीजन. दे हैव स्पॉइल्ड. अब कोई बुक लिखा है, उसमें रावण को हीरो दिखाया है और सीता को विलन दिखाया है. पता है आपको? नहीं, विलन नहीं दिखाया है, बट सीता जी को वॉरियर बनाया है. मतलब कुछ भी अपने मन में आएगा, And they're putting कुछ भी कॉन्कॉक्शन दे दो, मेंटल स्पेकुलेशन करो और उसको कूल बना दो. इन दिस वे दे आर फूलिंग एवरी वन ऑफ अस. डोंट गेट फूल्ड बाय दैट. और इसकी वजह से संसार में आज तक भारत में खास करके जो बेचारे ऑलरेडी थोड़े स्पिरिचुअल है, वो बेचारे क्या हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं. one thing I've noticed that when in the morning when I go for my maybe for exercises or yoga, then I come back and I chant. The difference after chanting is tremendous because it calms the body so nicely because you're already heated up and you're already into that phase. And once I finish my chanting,
the body enters in a totally different phase. You enter into total calmness. Yeah. You come down. Your blood pressure really comes to normal. Whatever is there, the difference is there. So what do I mean? I'm just sharing. माला फेरती हूँ तो like I do that every morning. इसलिए अभी लेट हो गया तो एक अलग सी पीस मिलती है वो करके. As you said, the difference is noticeable. You notice it. क्योंकि जो पीस भगवान दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता. Because ultimately everything is controlled by him. He knows इसको कौन सा इस समय क्या प्रॉब्लम है. अगर आप कभी कभी किसी को काउंसलिंग लेने में जाते हैं, सामने वालों को बता भी नहीं पाते, कन्वे नहीं कर पाते कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, समझ नहीं पाएगा आपको. लेकिन भगवान ऐसा एक ही व्यक्ति है जो आपको सदा सर्वकाल समझ सकते हैं, आपकी हर तकलीफ को. बिकॉज ही इज सुपर सोल विद इन योर हार्ट एंड ही कैन रीड योर माइंड. इवन घर में रहने वाले दो लोग आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते. वो बोलता है कि ये साबुन यहाँ पे क्यों रखा, वो बोलता है कि नहीं यहाँ ही रखना चाहिए. क्यों रखना चाहिए, नहीं यही रखना चाहिए. मैं बचपन में था ना तो ऐसे रखता था. तो उसका क्या लेना देना है बचपन का. अभी बचपन गया, अभी मैं हूं इधर इधर नहीं रखना, उधर रखना है. बस इसी से बड़ा फाइट चालू हो जाता है. स्मॉल थिंग्स. घर में रखा है क्या किधर. कुशन ठीक से होना चाहिए. जब मैं नीचे आऊं तो अच्छा लगना चाहिए. लाइक दैट देयर आर मेनी हमारा माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है. हम लोग आश्रम में भी एक्सपीरियंस करते हैं ना. कोई ब्रह्मचारी ऐसे बैठता है तो हम बोलते हैं ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे बैठना, थोड़ा रिलैक्स होके. तो तुमको क्या प्रॉब्लम है. कोई ऐसा बैठेगा, बेचारा उसका अपना पहले का संस्कार है. वो कोई ऐसा बैठ के खाता है तो हम बोलते हैं ऐसा क्यों बैठ रहा है यार, ऐसा बैठना शांति से. कोई चेयर के ऊपर बैठता है. कुछ ब्रह्मचारी हमारे ऐसे हैं, वो चेयर पे ही बैठ के खाएंगे, जमीन पे कभी नहीं बैठेंगे. तो मैं देखता हूँ क्यों चेयर पे बैठता है यार, नीचे बैठना शांति सबके साथ. बट उसका वो अपना संस्कार है ना. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उसका क्या प्रॉब्लम है. सो लाइक दैट. हरे कृष्णा. तो केले के पत्ते में भी मैं स्पून से खाती हूँ बचपन से. हाँ देखो. So my in-laws criticize me a lot. मैं भी criticize करूँगा. पर मैं हाथ से खा ही नहीं सकती. मेरा भाई ने सीख लिया है. मैं नहीं खा सकती. स्पेशली दाल चावल मैं नहीं खा सकती. हाथ से. स्पून से लेते. स्पून से ही खाती हूँ. बचपन में ऐसे खाया है ना, तो अभी मालूम होना चाहिए हमको. in-laws बहुत criticize करते हैं कि क्या है ये, केले के पत्ते में भी स्पून से. Because they cannot understand. ये तो सैंडविच भी फोक और नाइफ से खाता है. सैंडविच को कैसे करते फोक और नाइफ से. अच्छा काट कोट के ऐसे की. सैंडविच ये तो. So these are all details. एक चीज याद रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ है, वो भगवान का नाम का जप कर रहे हैं ना, that is the primary quality. उसको देख के खुश हो जाओ. अरे कुछ भी हो यार. मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कैसे भी करना है. You know, this is actually we all have to eventually see this as you grow in your life. You have to see this primary quality. कृष्ण का शरण, भगवान का शरण लेने की कोशिश. बाकी सब डिटेल है. Differences रहते रहेंगे. Sometimes they will be humorous, sometimes they will be really serious. But उसको ऐसे ही भगवान के जप कर रहे हैं ना, बस. I just see that he is very sincere and taking to spirituality, and that's why he is my best friend, best husband, best wife, best child, and like that. So this is how Bhagavad Gita introduction is complete, and at the end Prabhupada says, at the very end Prabhupada says, you know, वो जो एक वर्ष दिया है उसको पढ़ के हम पूरा करते हैं. एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस तस्य नामानि यानि. The translation है, in this present day people are very much eager to have one scripture, one God, one religion and one occupation, isn't it? सब एक चाहिए लोगों को. Therefore ekam shastram devaki putra geetam, let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Eko deva devaki putra eva, let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Eko mantra tasya namani, and one hymn or one mantra, one prayer, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Karmapi ekam tasya devasya seva, and let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead, which includes work to his devotees, service to his devotees as well. Like that, this is a very beautiful introduction of Bhagavad Gita as it is. अगर इसको आपने स्किप किया होता
तो बहुत कुछ मिस किया होता आपने। Correct. तो आप लोग तो वो डे 1 से बोल रहे थे हमको गीता फर्स्ट श्लोक कब पढ़ाएंगे हमको गीता का। That was some devotees who had come and they are no more. Yeah. with us. वो दे सौ कि अरे ये तो भगवद गीता कभी चालू ही नहीं करेंगे लगता है, बट दे मिस्ड अ लॉट। Yes. The GSD course was very important. JSD course, and then this is also kind of Prabhupada's JSD course, but in a very core language of Bhagavad Gita. That was in our modern language, अपने लैंग्वेज में था वो, but ये प्रभुपाद का एकदम भगवद गीता के साथ JSD course था। So that's how it is very important. So all of you please go through this introduction. हम इसको डिवाइड करेंगे। इसके कितने पॉइंट्स हैं टोटल? 9 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, और इंट्रोडक्शन वाला बिगिनिंग वाला प्रीफेस का that 1 point, that all together makes 10 points. तो इसको प्रेजेंट कौन करेगा नेक्स्ट टाइम? Whoever you say. एटलीस्ट यू गो थ्रू एंड रीड इट। मैं पूछूंगा किसने किसने पढ़ा, ग्रुप में हम डाल देते हैं एक। At least the GSD course I can say. ये भी पढ़ेंगे ना आप लोग? अभी पढ़ेंगे। हाँ, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं। यू टेक योर टाइम, यू मे टेक 1 week और 2 week, यू नो। जापान जाएंगे तो बहुत टाइम मिलेगा। नहीं, वो वीडियो लाइक किया ना आपने जापान का, तो मुझे पता चल गया। आई केम टू नो ये लोग पक्का जापान जा रहे हैं, उधर हरे कृष्ण वाले मिलने वाले, इनको इस्कॉन वाले। इस्कॉन है वहाँ पे? Yes, we are there. हाँ, Yeah, he had posted recently about a video, where Japanese people were dressed in saris and kurtas. Chanting Hare Krishna. And chanting Hare Krishna on the road. मैंने लंदन में देखा था, हर जगह है। और मुझे आके बोल रहे हैं डू यू नो हु कृष्णा है? मैंने बोला मैं इंडियन हूँ, ऑफ कोर्स आई नो कृष्णा है। But they want to know that do you know Krishna in truth? That's what they're asking. वो इंडियन नहीं था, वो ब्रिटिशर था। Devotee. हाँ, डिवोटी था, but he was dressed like you. Saffron में था, ब्रह्मचारी। And he was a Britisher, and वहीं पास में ISKCON temple था where I was roaming और around. इसको बहुत बड़ा भक्तिवेदांत मैनर करके बहुत बड़ा, you know जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स, Yeah. was a big singer. Yeah, he donated a big very land to Prabhupada in 1970s के आसपास, and he was also a very good follower of Hare Krishna. He wanted to become monk. So all the प्रभुपाद से Indians आप मत बनो, आप अपने संगीत से लोगों को प्रचार कराओ। हाँ, तो all the Indians went there to, उन्होंने बोला आइए आपको फ्री खाना मिलेगा, तो वहाँ मैंने देखा बहुत इंडियन वहाँ पे फ्री खाने की वजह से जा रहे थे। वेजिटेरियन मील अगर आप बाहर को कहीं इंडिया के बाहर चाहिए तो इस्कॉन। जापान ISKCON. वेजिटेरियन मील नहीं मिलता है बहुत जगह पे, और मिलेगा तो आपको मालूम नहीं है, वो सेम पैन में बनाया होगा। और जापान में तो वो बहुत इंडिया कुछ, में भी होता है। लेकिन उधर ज्यादा। एटलीस्ट इंडिया में यार कोई देखेगा वेजिटेरियन, थोड़ा उसको लगेगा कि पाप लगेगा मुझे। They found Indian restaurants. बाहर तो पाप पुण्य का कोई कल्चर है ही नहीं। उनके तो अंडा वेज ही होता है, उनको वेज खाना होगा तो अंडा दे देते हैं। अंडे से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें खाते हैं वो लोग। फिश वेज होती है, वेज खाना भी टेबल में अंडा नहीं। अब मेरे भाई बोलते हैं कि वहाँ ये पूछना चाहिए ये बीफ है, बस ये पूछना चाहिए, Yeah, yeah. नहीं है तो ठीक है। Very horrible condition outside. I've been to Egypt. When I went to the restaurant, the menu card to Arabic में था. So now how to ask? So I says, what is this? Oh, I said no. Pork. Give me that. Chicken. Hare Krishna. They eat beef. So Yeah, देखिए। let us do 5 minutes कीर्तन। Yes. तब तक मैं गाड़ी भी बुकिंग के डाल देता हूँ। When you say eat, मिलन प्रसाद है प्रभु जी? Sorry? प्रसाद है? You can give me in packet because I'm in hurry. I have to reach there by 12:30. Where you been? Temple. Oh, there है। Once I see where Arya is there. 45 minutes तो लगेगा ही ना? I'll tell ask Arya is there. Yeah, check with him, otherwise I'll book a cab. Hare Krishna. So let us have a spiritual bath. हरे स्नान करेंगे अभी हम लोग, स्पिरिचुअल स्नान। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe Jai Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol It's a very beautiful sound, isn't it? And this sound, actually there are different frequencies and vibrations. They heal the mind at different levels. And in addition to that, if you chant the name of God, it's supremely powerful. Only to get a speaker next week. No, I'll get it. What happened, because these last 2 weeks, I am little busy. Now I have to. I have a very good speaker which will be very convenient. Okay, then get that. Let's see. हाँ, In the service of God. yeah, please. Because ये थोड़ा छोटा हो जाता है, that will be Yeah. surrounded. Oh, yeah. Okay. That other one that I used to get, the big one. हाँ, नहीं, That- वो not that. It's this much it is, but it's Okay. quite powerful. Fine. It's like a कमंडल जैसा. Today he is going out for beach cleaning to Chopati. Oh, I will get 2:30 for that. sorry. So Now he is coming? You can drop him and can be there only. No, that's okay. for my lunch. No, that's okay. I'll go by cab, na. Let him follow his guide. He has to go for cleaning. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So let's meet next week. पंडित जी कल एकादशी है ना? Yeah, कल एकादशी है. हाँ. तो अभी तो that your system will be not. No, I'll get it. मैं क्या है ना 2 हफ्ते से थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं उन बच्चों को भी लेके नहीं आ पा रहा हूँ और मैं इधर से दूसरी जगह से ट्रैवल करके आता हूँ. तो अगले हफ्ते आएगा. Will come. Yeah. Otherwise I can get it. मैं लेके आ सकता हूँ. नहीं अगले हफ्ते It's करेंगे. it's very convenient. आप लेके आ जाओ, देखते हैं कैसा है. हाँ. It's this much only, but it's very Yeah. powerful. ये उधर
And the sound is very clean. Bose. हाँ nice revolve अच्छा मेरे को आइडिया नहीं It's like a sound. अच्छा अच्छा Rounded speaker. हाँ पल्स वाला और वो एक भी पोर्टेबल. The next version. एयर चार्ज पता चले बीच में मत हो हाँ एक रिवॉल्व प्लस है उसका बैटरी काफी पोर्टेबल का भी है पर एक मतलब सुबह चार्ज किया एक दिन चलेगा 8 आवर्स में छोटा सा रिवॉल्व प्लस उसमें कभी दिया नहीं जलाते जाने लगे रहते हैं. This is the Lala Jamnadas Gupta road यही है. No. You want location? The address? I'll type the address. वृंदावन टेरेस राइट. Brindavan Terrace. ऑलरेडी उसने ले लिया. It usually comes up आगे जाके वो अच्छा मतलब यही है ना एरिया वही है ना. Yeah, we- लाला जमदास गुप्ता रोड मतलब इधर ही आ जाएगा ना. he'll come in this lane when he stops at the We building. will call him. We will call him. the speaker is rounded. ठीक है 6 मिनट में आ रहा है. Sound is beautiful it is. तो 15 दिन पहले संडे के दिन एकादशी थी ना, तो आपने कहा था तो मैं वो फास्ट अभी शुरू किया है ना मैंने, तो उस दिन ये लोग सब डिनर का प्लान बनाया तो मैं गई पर मैंने कुछ खाया नहीं. तो मुझे आई थिंक फॉर द फर्स्ट 15-20 मिनट क्रिटिसाइज नहीं करा. आर्या, इसको बेटा करो, वापस रोल करो. हस्बैंड सपोर्ट्स मी, कहते हैं कुछ नहीं होता है. मतलब बहुत ज़्यादा तो उनको फिर मैं हो जाए. हाँ तो जिनके पास पैसा होता है वो उनको और पैसा चाहिए तो भगवान को पटाने के लिए